السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری ماں خوبصورت تھی مگر اچھی تقدیر نہ تھی کہ والد صاحب شادی سے پہلے کسی لڑکی کو چاہتے تھے اور اس کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتے تھے، لیکن اس لڑکی کے گھر والوں نے ان کا رشتہ رد کر دیا۔ تب دادی نے بیٹے کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی اور یوں میری والدہ ان کی بہو بن گئی۔ شادی تو ہو گئی مگر جیون ساتھی کے دل میں تو کوئی اور بسی تھی۔ انہوں نے اپنی دلہن کو دل سے قبول نہ کیا۔ مشترکہ فیملی سسٹم تھا۔ ماں اور بھائیوں کے دباؤ سے مارے بھاندے کچھ برس بیوی کے ساتھ گزار دیے مگر اپنی پہلی محبت کو نہ بھول پائے۔ اس لڑکی سے جس کا نام ندا تھا وہ اکثر چھپ چھپ کر ملتے رہتے تھے۔ ایک دن زمانے کی پرواہ کیے بغیر دونوں نے اپنی مرضی سے نکاح پڑھوا لیا۔ ندا کے والد اور بھائیوں کو اس طرح اپنی لڑکی کے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا بہت دکھ تھا اور وہ میرے ابو سے بدلے کی سوچ رکھتے تھے۔ 2 بار ان کے سالوں نے چاقو سے وار بھی کیا جب وہ کہیں راستے میں ان کو مل گئے تھے، لیکن خدا نے بچا لیا۔ اب والد کو ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ضرور ندا کے بھائی کسی دن ان سے بدلہ لیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے نوکری چھوڑ کر وہ ندا کو لے کر کسی نامعلوم شہر میں جا بسے۔ اب وہ صرف کبھی کبھی دادی سے خفیہ طریقے سے رابطہ کر لیتے تھے، باقی کسی سے ناتا نہ رکھا، بیوی بچوں سے اور نہ فیملی کے دوسرے افراد سے۔ والد نے کبھی 1 روپیہ بھی ہم کو نہ بھیجا۔ ماں بیچاری اپنے جیٹ کی دستے نگر ہو گئی۔ میرے تایا ایک شریف اور حساس انسان تھے۔ جب انہوں نے بھائی کی اولاد کو بھوک سے بلکتے دیکھا تو پریشان رہنے لگے۔ ایک معمولی ملازمت تھی اور تنخواہ میں 2 کنبوں کا گزارا محال تھا۔ تبھی نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور بیوی کے زیور فروخت کر کے وہ بیرون ملک جانے کی تگدو میں لگ گئے۔ تائی نہ چاہتی تھی کہ کمانے کی خاطر وہ دبئی جائے۔ وہ لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی۔ تایا کے سسر اور سالے ان کو سمجھانے آئے، وہ پھر بھی نہ مانے تو انہوں نے بات کو اتنا بڑھا دیا کہ نوبت طلاق تک پہنچا دی۔ یوں تائی نے طلاق لے لی اور ہماری خاطر تایا ابو کا بسا بسایا گھر برباد ہو گیا۔ ان کے 3 بچے تھے، وہ بھی تایا نے امی جان کے حوالے کر دیے۔ ہم 3 بہن بھائی اور والدہ، 4 افراد کا خرچہ اب تایا کے ذمہ تھا۔ دادی حیات تھی، انہوں نے کسی بیٹے کو علیحدہ رہنے کی اجازت نہ دی، لہٰذا ہم سب بھی ان کے ساتھ دادی کے گھر قیام پذیر تھے۔ تایا کی نیت اچھی تھی، بیرون ملک جاتے ہی ان کو اچھا روزگار میسر آ گیا اور خوب کمانے لگے۔ وہ ہر ماہ ایک معقول رقم امی کو ارسال کرنے لگے۔ وہ گھر کی بڑی تھی، سارے کنبے کا خرچہ وہی چلاتی تھی۔ ہمیں خبر نہ تھی کہ ہمارا باپ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، ہم تو بچے تھے، والدہ کی افسردگی کو محسوس ضرور کرتے تھے۔ ان دنوں میری عمر 6-7 برس ہوگی اور میرا بھائی نعمان مجھ سے صرف 1 برس اور 2 ماہ ہی بڑا تھا۔ وہ کچھ لاپرواہ مگر میں کافی سمجھدار اور حساس تھی، حالات کو جلد سمجھ لیتی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھ کو ماں کا دکھ سمجھ میں آنے لگا اور میں ان سے زیادہ قریب ہو گئی۔ امی کو میکے والوں کی سپورٹ حاصل نہ تھی، وہ صرف اس امید پر زندگی کے دن گزار رہی تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ ہم کو سنبھال لے گا۔ ہمارے لیے دادی کا وجود اللہ تعالیٰ کا انعام ہی تھا کہ ہم ان کے مشترکہ فیملی سسٹم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ کھانا ایک جگہ پکتا اور سب کو ایک سا ملتا تھا۔ 2 چچا اور بھی تھے، وہ بھی اپنی آمدنی دادی کے ہاتھ پر رکھتے اور تایا بھی ہر ماہ باقاعدگی سے رقم ارسال کرتے رہتے تھے۔ دادی بہت اچھے طریقے سے اس رقم سے گھر بھر کا نظام چلاتی تھی۔ ہر کسی کو معقول جیب خرچ ملتا اور سب کے کپڑے ایک نوعیت کے ہی خریدے اور سلوائے جاتے۔ غرض باپ کے ہونے نہ ہونے کا احساس ہم کو نہیں ہوا کہ ضرورت کی ہر شے ہمیں ملتی تھی، کسی قسم کی تنگی نہ تھی۔ تاہم امی جان کو ضرور یہ احساس محرومی ستاتا تھا کہ وہ اور ان کے بچے شوہر کی نہیں بلکہ جیٹھ اور دیوروں کی کمائی پر پل رہے ہیں۔ والد صاحب نے کبھی ہماری کفالت کا ذمہ نہیں لیا اور نہ کبھی ملنے آئے۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد تایا ابو نے دوسری شادی نہ کی۔ ہر بار جب چھٹی پر آتے دادی ضرور کہتی کہ فیاض بیٹا اب تم دوبارہ سے شادی کر کے گھر بسا لو، میری زندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تم کو گھر بار کا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کچھ اور ٹھہر جاؤ، مجھ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تھوڑی رقم اور جمع کر لوں تو ہو جائے گی شادی بھی۔ تاہم اس بار جب آئے دادی نے اپنے رشتہ داروں میں ایک خوبصورت اور کم عمر لڑکی سے ان کی شادی کرا ہی دی۔ شادی کے بعد تایا اپنی نئی دلہن کے ساتھ صرف 1 ماہ رہ سکے کہ چھٹی ختم ہو گئی تو وہ واپس دبئی چلے گئی۔ تایا کے جانے کے بعد تائی سدرا بہت اداس رہنے لگی۔ ان دنوں میں 8ویں اور نعمان 10ویں میں تھا۔ ضرورت کی اشیاء سدرا میرے بھائی سے منگواتی۔ وہ نعمان کے ساتھ خوب باتیں کرتی کیونکہ میرا بھائی حد درجہ باتونی تھا۔ نعمان کی کمپنی سے تائی کا دل بہلا رہتا تھا۔
सिद्रा को ताई बुलाने से झिझक आती थी क्योंकि उनकी उम्र 16-17 वर्ष थी और ताई का कहना उन पर जचता ना था। मैं तो उनको सिद्रा आपी ही बुलाती थी, जबकि नोमान सिर्फ सिद्रा और कभी सिद्रा ताई भी कह देता तो कहने पर वो बुरा मना लेती। तुम्हारा ये ताई बुलाना मुझ पर जचता नहीं है, तुम लोग मुझको सिर्फ सिद्रा या सिद्रा आपी कहकर बुला सकते हो। जब सिद्रा का दिल तन्हाई से घबराता वो मुझे और नोमान को अपने कमरे में बुला लेती। मेरा मसला ये था कि मुझको ज्यादा बातें करना पसंद ना था। स्कूल से आकर अम्मी के साथ काम कराती और फिर पढ़ने बैठ जाती, जबकि नोमान निकम्मा और लापरवाह किस्म का बातूनी लड़का जिसको पढ़ने से ज्यादा इधर उधर फिरने और वक्त जाया करने से काम था। उसकी सिद्रा ताई से बन गई और वो घंटों उनके कमरे में बैठकर गप्पे हाँकता, अपना वक्त जाया करता रहता। अम्मी उसको कुछ ना कहती कि कहीं सिद्रा बुरा ना मान जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। भाई ने किसी तौर पर मैट्रिक पास कर लिया। अब वो कॉलेज जाने से जी चुराने लगा, आए रोज छुट्टी कर लेता। बिल आखिर उसने कॉलेज को खैराबाद कह दिया क्योंकि उसको पढ़ाई से दिलचस्पी थी ही नहीं। अब उसका सारा वक्त सिद्रा ताई के कमरे में गुजरता, उसके साथ हंसता बोलता, जिससे उसका दिल बहल जाता था। इन्हीं दिनों फुप्पो की शादी हुई। ताया शादी पर दुबई से आए लेकिन छुट्टी खत्म होते ही वापस चले गए क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। अगर बगैर छुट्टी के रुकते तो नौकरी चली जाती। नोमान इस वक्त कच्चे जहन का नासमझ लड़का था। बाप का हाथ सर पर ना था, लिहाजा खुद सर हो गया था। अम्मी का कहना नहीं मानता था, सिर्फ ताया से लिहाज था। चचा यूं भी उसको कुछ ना कहते कि महसूस ना कर ले कि बाप मौजूद नहीं है, तो चचा डांटे और टोकते हैं। चचा सुबह ऑफिस चले जाते, घर में नोमान ही होता, वही सौदा सल्फ भी लाता। बाकी वक्त सिद्रा ताई के कमरे में घुसा रहता। उनके कमरे में नया टीवी था जिसमें ज्यादा चैनल आते थे, वहाँ टीवी देखता या फिर सिद्रा को नई नई इंडियन फिल्मों की कैसेटें ला कर देता और दोनों वीसीआर पर फिल्में देखकर वक्त पास करते। दादी नई नवेली बहू को कुछ ना कहती कि दुल्हन बगैर दुल्हा के ससुराल में रह रही है, उसका जी बहला रहे। किसी को खबर ना थी कि सिद्रा की शादी से कबल किसी और लड़के से जान पहचान थी। वो लड़का आवारा किस्म का था और उनके मोहल्ले का था। सिद्रा के वालिद उसको नापसंद करते थे। ताया घर होते तो शायद उनकी दुल्हन की हिम्मत ना होती। अब तो तन्हाई के दश्त की मुसाफिर थी। मेरे भाई के साथ दोस्ती बनाकर उन्होंने उसको अपना पैगंबर बना लिया जिसका किसी को इल्म ना हो सका। नोमान भी उनकी चिकनी चिपड़ी बातों की वजह से उनके घेरे में आ गया। उसको खूब रुपया पैसा जेब खर्च देकर अपनी तरफ करा लिया। वो बेवकूफ भी ताया से गद्दारी करके सिद्रा का राजदार बन गया। अब सौदा सल्फ के बहाने नोमान को जहां बेचती, हुक्म के गुलाम की तरह तामील करता। घर वाले समझते कि ताई का काम है, ये ना करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन कौन जानता था कि ये शातिर लड़की उससे क्या काम ले रही है। सभी ये समझते कि चलो दुल्हन का जी पहला रहता है, नोमान से हंस बोल लेती है तो कोई बात नहीं। नोमान इकलौता था, दादी उसको बहुत चाहती थी। वो दादी की जान था, उसकी हर बात मानती और हर फरमाइश पूरी करती थी। यूं उसका मिजाज बिगड़ गया। अम्मी की कोई बात ना मानता, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी थी। जब दादी का इंतकाल हो गया तो मंजरे चचा की बीवी ने अलहदा घर में रहने का मुतालबा कर दिया। वो बीवी को लेकर अलग हो गए। इस पर छोटी चच्ची ने भी मुतालबा किया कि सहन के दरमियान दीवार उठाकर हमको भी अलहदा करो ताकि सुकून से रहे। अब आधा घर दीवार के उधर, ताई आधे में, हम और सिद्रा ताई रह गए। ताई का बस ना चलता था कि वो भी अलहदा हो जाती, मगर अकेले होने की वजह से साथ रहने पर मजबूर थी। हाँ, इतना मुतालबा जरूर किया कि सहन के आधे हिस्से में दीवार होनी चाहिए, मगर दरवाजा भी बना दे ताकि आना जाना रहे और घर एक मालूम हो। उन्होंने किचन भी एक रहने दिया ताकि मेरी माँ और हम बहनें ही पकाएं और वो किचन के बखेड़े में ना पड़े। माँ ने सिद्रा के कहने की तामील की क्योंकि कमाता तो उनका शौहर था और हम उनकी कमाई खाते थे। अम्मी को हर हाल में अपनी जिठानी को खुश रखना था। सिद्रा के जेब खर्च की रकम हर माह ताया उनको अलहदा भिजवा देते थे। ये रकम वो जैसे चाहे खर्च करती थी। खासी रकम हर माह मिल जाती तो नोमान को भी ऐश करा देती, जो चीज वो चाहता दिलवा देती। दादी की वफात के बाद उनका कमरा नोमान को मिल गया। कमरा सिद्रा ताई के कमरे के साथ ही था।
सिद्रा ने अम्मी से कहा कि अकेले सोने से डर लगता है। नोमान रात को भी दादी के कमरे में सोया करे तो मुझे डर ना लगेगा। अम्मी ने भाई से कहा कि तुम ताई की तरफ जाकर सोया करो। शादी के बाद सिद्रा काफी दिलेर और आजाद ख्याल हो गई। शोहर के बाद सास के न होने ने बेखौफ कर दिया था। मेरे भाई को भी लालच देकर उसने अपनी तरफ कर रखा था। वो किसी न किसी बहाने अब नोमान के साथ घर से भी बाहर जाने लगी, कभी शॉपिंग के लिए बाजार और कभी किसी सहेली के घर का कहकर। अम्मी उससे दबती थी कि कुछ कहा तो कहीं शोहर को हमारी शिकायत न लिख भेजे। इससे ये हुआ कि नोमान भी सिद्रा का गुलाम बन गया और हमारे हाथों से निकल गया। एक दिन शोरगुल का बहाना बनाकर सिद्रा ने आधी उठी सहन वाली दीवार को ऊंचा करके अपने हिस्से को मुकम्मल तौर पर हमसे अलहदा कर दिया और मेरा भाई जो लालची और खुद गर्ज हो चुका था मुस्तकिल उनकी तरफ वाले हिस्से में जा बसा। हमको इस बात का बहुत सदमा था कि नोमान हमको छोड़कर सिद्रा की तरफ चला गया है। बेशक वो अकेली थी मगर हम भी तो अकेले थे। घर में मर्द तो सिर्फ भाई था, हमारी तरफ भी आता था मगर आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात तो हो चुकी थी। ताई उसकी जेब में अच्छी खासी रकम डालती रहती, यही नहीं अच्छे कपड़े और खाने की मजेदार चीजें देती तो वो उधर का रहा। मेरी माँ की उम्मीदें खाक में मिल गई। अब लोग सिद्रा और नोमान के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। हमारे बाप का तो पता ना था, हम सब नोमान के सहारे और उम्मीद पर जी रहे थे। वो भी हमसे दूर हो गया। उसको माँ का तो क्या मोहल्ले वालों का भी लिहाज ना रहा कि वो कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अपने ताया को भी भूल गया कि जिन्होंने हमारी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। माँ खौफ के मारे ताया को कुछ लिखने से मजबूर थी। इधर सिद्रा के हौसले बढ़ते जा रहे थे। वो अब घर में ना टिकती थी। अपनी आरजुओं की तकमील की खातिर वो नोमान को साथ लिए फिरती और वो नादान ताई की चालों का खिलौना बना हुआ था। बिल आखिर मंजली चचा ने इस राज का खोज लगा लिया। जब मोहल्ले वालों ने आकर उनको होशियार किया तो उनको कुरेद लगी। तब मालूम हुआ कि सिद्रा अपने मोहल्ले के उसी लड़के से मिलती है जिसको वो शादी से कब्ल पसंद करती थी। एक दिन मंजली चचा ने सिद्रा को उसी नौजवान के साथ सिनेमा हॉल से निकलते देख लिया, जबकि नोमान सिनेमा से करीब एक होटल में बैठकर सिद्रा के आने का इंतजार कर रहा था। चचा ने घर आकर नोमान की पिटाई की तो उसने कहा, चचा मैं मजबूर था। सिद्रा ताई कहती थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी वालदा और बहनों की झूठी शिकायतें तुम्हारे ताया को लिख भेजूंगी। वो तुम सबको घर से निकाल देंगे और खर्चा भी बंद कर देंगे। तब तुम क्या करोगे? तभी मैंने इस मामले को इससे भी पोशीदा रखा, अम्मी से भी पोशीदा रखा कि ताई अपने पुराने चाहने वाले से मिलती है। बहरहाल मंजिल चचा ने ताया को तमाम अहवाल लिखकर आगाह कर दिया। उन्होंने दुबई से ही सिद्रा को तलाक भिजवा दी, मगर हमको भी नोमान की बेवकूफी की सजा मिली कि उन्होंने अम्मी को भी इस खेल में शामिल समझा। हमसे इस कदर बदल गए कि हमारा खर्चा बंद कर दिया। ताया और मंजली चचा ने अम्मी से कहा कि अगर नोमान यहाँ रहेगा तो तुम सब भी घर छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना उसको उसके बाप के पास जाने का कहो। आखिर उसका भी तो कुछ फर्ज है कि अपनी औलाद को देखे। अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर नोमान को उसके बाप के पास चले जाने का कहा और चचा ने नोमान को पता बता दिया जहां मेरे वालिद अपनी बीवी के साथ रहते थे। नोमान वहां पहुंचा तो उसको वालिद ना मिले क्योंकि वो तो काफी अरसा पहले वहां से चले गए थे। अलबत्ता मोहल्ले वालों ने बताया कि जिस लड़की को भगाकर उसके साथ निकाह करके यहाँ लाए थे उसके विरसा ने बिल आखिर यहाँ का खोज लगा लिया और वो अपनी लड़की को ले गए और तुम्हारे वालिद को जोदोकोब और आदमुआ करके डाल गए। बाद में उस लड़की ने भी अदालत में अपने बाप और भाई के हक में बयान दिया कि उस शख्स ने मुझे वरगलाकर अगवा किया था और जबरदस्ती निकाह पर मजबूर किया था। वो वुरसा की तरफ हो गई और तुम्हारे वालिद को जेल हो गई। वो अब भी जेल में है। नोमान सुन होकर हमारी तरफ भी ना लौटा, न जाने किधर निकल गया। यूं हमारे वालिद के किए की सजा हमको मिली और आज तक मिल रही है। हमारे हिस्से की जायदाद मंझले चचा ने खरीद ली और हमको इस रकम से दूसरी जगह मकान खरीद कर दे दिया। मैंने बड़ी मुश्किलात सहकर ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत कर ली और अपनी वालदा और बहनों की कफालत का बोझ उठा लिया। वालदा आज भी अब्बू का इंतजार करती हैं, मगर मैं कहती हूँ कि खुदा किसी ऐसे इंसान को बाप के दर्जे पर फाइज ना करे जिसको अपनी औलाद का एहसास ना हो।